Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Hafsa Yasin and today I am here with another topic, that is Civil Servants Act 1973. Yesterday we have discussed some parts of Civil Servants Act 1973, that how they are basically hired for the organization or for the different departments, how they are promoted, and today we will discuss further. Uh, so we were on the chapter 2 of the Civil Servants Act 1973. So let's continue the topic, pay. So a civil servant will basically be appointed to a post or grade which he or she shall be entitled in accordance with the rule to pay sanction for such post. अच्छा जी, जब भी किसी सिविल सर्वेंट को अपॉइंट किया जाएगा तो उसको जो उसकी पे होगी वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस होगी जो कि एक्ट में मेंशन्ड हैं, और उसकी जो पे है उसको फिक्स किया जाएगा। और उसमें जो है अगर कोई भी एडिशनल चार्जेस हैं तो वो ऑलरेडी डिफाइंड होंगे कि जी ये एडिशनल चार्जेस जो है इस शख्स को पे किए जाएंगे। दैट एडिशनल चार्जेस कैन बी द हेल्थ चार्जेस, दैट कैन बी द ट्रेवल अलाउंसेस, दैट कैन बी द house allowance, all of these allowance. But ultimately these must be banished, that this is the basic pay, these are the allowances, and this is the fixed pay that will be paid to the person at the end of the month. Then leave, a civil servant shall be allowed to leave in accordance with the leave rules which are applicable to him, provided that the grant of leave will depend on the basically his services in the department. Then there's pension and gratuity. On retirement from the services, civil servant shall be entitled to get the pension or the gratuity. In the event of the death of civil servant, whether before or after retirement, his family shall be entitled to receive the such pension or gratuity at both as may be prescribed. But no pension shall be admissible to a civil servant who is dismissed or removed from the services for reasons of discipline, but government may sanction compensate allowance to such a civil servant. So basically what happened, that if a civil servant is going through some kind of corruption charges or some kind of is involved in some illegal activity, or he or she is dismissed from his post, so ultimately he will not be liable to get the pension. But there is the chance, if the government provide some kind of help to his wanted to provide some kind of help to his family. Then comes to the basically provident fund, or we can say the benevolent fund. Before the expiry of the third month of every financial year, the account officer or other officer required to maintain the provident fund accounts which will furnish to every civil servant subscribing to a provident fund, the account of which he is required to maintain a statement under his hand showing the subscription to including the interest occurring thereon. If any withdrawals of advances from his provident fund during the preceding financial year. So basically what happened, that after जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 3 महीने पहले, हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो जून में एंड होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो अप्रैल में, और अप्रैल के मंथ में जो है वो सिविल सर्वेंट्स को अपना बेनेवोलेंट फंड के लिए अपनी फाइल जो है, प्रोविडेंट फंड के लिए अपनी फाइल जो है उसको सबमिट कराना पड़ता है, और उसके बाद जो है वो एट द एंड उस फंड के लिए अहल होते हैं। उसके बाद है जी बेनेवोलेंट फंड, ऑल सिविल सर्वेंट्स एंड देयर फैमिलीज शैल बी इंटाइटल्ड टू गेट द बेनेवोलेंट फंड or the benefits which are admissible under the Central Employees Benevolent Fund and the group insurance. A right of appeal or representation, where a right to prefer an appeal or apply for a review in respect of any order relating to the terms and conditions of his services which are provided in the Civil Servant Act under any rule applicable to him. So application such shall be otherwise prescribed be made within the 30 days of the date of such order. In case अगर किसी शख्स की जो benevolent fund की जो application है वो reject हो जाती है, तो वो उसे दोबारा से जो है वो रिव्यू के लिए भी भेज सकता है, बट उसके रिव्यू के लिए उसे जो है within the specific
टाइम पीरियड जो अलॉटेड टाइम पीरियड होता है दैट इज 30 डेज, उसने उसे जो है वो प्रेजेंट करना है। अब आ जाते हैं जी चैप्टर 3 ऑफ द सिविल सर्वेंट एक्ट पे। चैप्टर 3 ऑफ द सिविल सर्वेंट एक्ट बेसिकली बात करता है जी सेविंग्स की। कहता है कि जी नथिंग इन दिस एक्ट or in any rule shall be constructed to limit or abridge the power of the president to deal with the case of any civil servant in such manner as may be appear to him to be just and equitable, provided that where this act or any rule is applicable to the case of the civil servant, the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided by his act. If a person is basically making his savings और वो सेविंग्स जो है अगर गवर्नमेंट को ये लगे या उसके इदारे को ये लगे, डिपार्टमेंट को ये लगे कि ये सेविंग्स जो है वो उसकी अर्निंग्स से बहुत ज़्यादा हैं, तो दे कैन बेसिकली स्टार्ट अ केस अगेंस्ट दैट पर्सन और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। लेकिन उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। और अगर वो शख्स अपनी सेविंग्स को जो है वो लीगल कर देता है और उसके लिए प्रॉपर सोर्सेज प्रोवाइड कर देता है, तो उसके बाद जो है वो डिपार्टमेंट का कोई राइट नहीं बनता कि उसकी सेविंग्स को कैप्चर कर सके या किसी भी तरीके से अपने कंट्रोल में रख सके। आफ्टर दैट इट इज इंडेमनिटी। सो बेसिकली इन इंडेमनिटी अगर कोई भी सिविल सर्वेंट अपने ऑफिस में अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ ऐसा काम करता है या कुछ ऐसी लीगल प्रोसीडिंग करता है या कुछ प्रोसिक्यूशन करता है जो कि बेसिकली पब्लिक के लिए फ़ायदा मंद है या पब्लिक ऑफिस के लिए फ़ायदा मंद है, तो उसके लिए उसे किसी भी लॉ का, किसी भी प्रोसिक्यूशन का, किसी भी केस का जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सिविल सर्वेंट एक्ट जो है वो उस शख्स को डिफेंड करता है और जी कहता है कि जी नो सूट, prosecution or other legal proceeding shall lie against a civil servant for anything which is to be done in his official capacity, which is in good faith done or indeed to be done under this act or the rules, instructions or directions made or issued there under 23B jurisdiction barred. So the basically rules which are defined in the civil servant acts are made there under no order made or proceedings taken under this act or the rules made under by the president or any officer authorized by him shall be called in question in any court, and no injunction shall be granted by any court in respect of any decision made or proceeding taken in pursuance of any power conferred by or under this act or the rules made there under. So what is basically the thing is कि जी अगर किसी शख्स ने स्टेट की बेहतरी के लिए, किसी सिविल सर्वेंट ने स्टेट की बेहतरी के लिए कोई ऐसा ब्रूटल एक्ट कर दिया है या कोई ऐसा जो है, ब्रूटल तो नहीं कह सकते, अगर कोई ऐसा एक्ट कर दिया है जो अपेरेंटली जो है वो ऐसा लग रहा हो कि शायद ये सबको नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन वो स्टेट के लिए फ़ायदा मंद हो, तो उसके लिए उस केस के लिए उसे किसी भी कोर्ट का जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा या उसे अपने एक्ट को जस्टिफाई नहीं करना पड़ेगा। फिर उसके बाद है जी रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज। इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेज इन गिविंग इफेक्ट टू एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द प्रेसिडेंट may make such order not inconsistent with the provision of this act as may appear to him to be necessary for the purpose of removing the difficulty. अच्छा जी, इन तमाम मसाइल के अलावा अगर किसी भी इशू का सामना करना पड़ता है किसी भी सिविल सर्वेंट को और उसके बारे में एक्ट में ऑलरेडी डिफाइन नहीं है, तो उसका फैसला जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करेगा और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जो डिक्लेरेशन होगी उसे प्रॉपरली लीगल डिक्लेरेशन जो है वो माना जाएगा। और क्योंकि वो आप समझ लें कि दैट विल बी द काइंड ऑफ नेसेसिटी रूल अल्टीमेटली विच मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द President of Pakistan. Then chapter 3 miscellaneous rules. अच्छा जी, रूल्स जो हैं वो उसमें क्या कहते हैं कि जी that is basically the chapter 3 is ended. Now the miscellaneous part started. Miscellaneous is basically based on the 4th chapter of the Civil Servant Act rules. The president or any person who is authorized by the president in this behalf may make such rules as appear to him to be necessary or
expedient or for carrying out the purpose of this act. अच्छा जी, इन केस अगर वो रूल्स जो है वो प्रेसिडेंट खुद नहीं बना सकता, या प्रेसिडेंट को ये लगता है कि आई एम नॉट मच इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्ट और अबाउट दिस होल फिनोमेना, तो प्रेसिडेंट अपने बिहाफ पे किसी शख्स को जो है वो हायर कर सकता है, या किसी शख्स को डायरेक्शन दे सकता है कि वो इस पर्टिकुलर एक्ट को जो है वो बेसिकली इम्प्लीमेंट कराए, या इसमें जो भी नेसेसरी अमेंडमेंट्स हैं उन नेसेसरी अमेंडमेंट्स को जो है वो बेसिकली वो शख्स इसमें अमेंड करे। उसके बाद आ जाता है जी, एनी रूल्स ऑर्डर इंस्ट्रक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ सिविल सर्वेंट्स ड्यूली मेड और इशूड बाय एनी अथॉरिटी which is competent to make them in force immediately before the commencement of this act shall in so far as such rules orders or instructions are not inconsistent with the provision of this act and which can be deemed to be rules made this act। इस एक्ट में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन सबको फॉलो करना जो है वो जाहिर है सिविल सर्वेंट्स का काम है, और अगर कोई शख्स जो है उसको नहीं मान रहा तो उसको इमिडिएटली जो है वो फोर्स करना चाहिए कि जी दीज आर द रेगुलेशंस दैट यू हैव टू फॉलो एंड you have to basically practice because as a civil servant of Pakistan। Then we will discuss some merits of this act। यूनिफिकेशन ऑफ द ग्रेडिंग स्ट्रक्चर, अल्टीमेटली इस एक्ट में जो है वो ग्रेडिंग स्ट्रक्चर को यूनिफाई कर दिया है, उसको ऑलरेडी आइडेंटिफाइड कर दिया है कि किसी शख्स को ये ना लगे कि जी किसी गलत या दुरुस्त बुनियाद पर जो है उसकी ग्रेडिंग की गई है। ऑलरेडी डिफाइंड है एक्ट के अंडर जो है उसकी ग्रेडिंग होगी, उसमें किसी भी किस्म की कोई फेवर नहीं होगी। प्रमोशन इन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, अल्टीमेटली एक शख्स जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा होता है और ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल जो है वो मूवमेंट हो रही होती है। वर्टिकल मूवमेंट में क्या होता है कि या तो एक शख्स जो है वो बहुत लोअर ग्रेड पे और अल्टीमेटली वो एक अपर ग्रेड पे पहुंच जाता है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में जो है वो आप ग्रेजुअली बेसिकली प्रमोट होते हैं, और ग्रेजुअल प्रमोशन में आपका एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा होता है, और अल्टीमेटली यू आर मोर बेसिकली लॉयल टू योर जॉब इवेल्युएशन की बेसिस पे आपकी प्रमोशन हो रही होती है, टाइम टू टाइम आपकी इवेल्युएशन हो रही होती है, आप ज़्यादा कंसर्न होते हैं अपनी जॉब के साथ। इंडक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, मोस्ट ऑफ द टाइम सिविल सर्वेंट्स आर इवन इंडक्टेड इन द प्राइवेट सेक्टर। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे स्मॉल सेक्टर्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज और की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी डिफरेंट सिविल सर्वेंट्स काम कर रहे होते हैं। दैट इज सॉर्ट फॉर प्राइवेट सेक्टर, जिसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो बेसिकली फंडिंग कर रहा होता है, लेकिन अल्टीमेटली चांसेस क्या होते हैं कि वहाँ पे भी ब्यूरोक्रेट उसको प्रॉपरली देख रहे होते हैं। कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम, टाइम टू टाइम जो है वो सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग्स भी होती रहती हैं, और उनके लिए उन ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करना भी कंपलसरी होता है, जिससे वो टाइम टू टाइम जितनी भी एमर्ज टेक्नोलॉजीज और सब चीज़ें होती हैं उनसे वाकिफ होते रहते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ द पॉलिटिकल ऑफिशियल्स, इसमें जो है वो पॉलिटिकल ऑफिशियल्स उनकी सुप्रीमेसी रहती है। अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेट्स यूजुअली पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ के अंडर काम कर रहे होते हैं, और पॉलिटिकल जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनके डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बेहतर काम कर सकते हैं। Innovation step, an important innovative initiative of private sector induction or lateral entry because of the lack of the transparency and violation of principles of merit and professionalism becomes politicized and resented and resisted by the bureaucracy and fails to gain legitimacy among the stakeholders। अच्छा जी, इसमें एक इनोवेटिव स्टेप जो बेसिकली इंट्रोड्यूस कराया गया, दैट वाज द इंडक्शन ऑफ द ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को किस तरह से इंडक्ट किया गया कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर्स काम कर रहे थे स्मॉल स्केल लेवल पे, उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोफेशनलिज्म जो है वो लैक कर रहा था, रूल्स वायलेशन हो रही थी, ट्रांसपेरेंसी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी था। तो इन सब को देखने के लिए हमने जो है वो उनके ऊपर सिविल सर्वेंट्स को हायर कर दिया ताकि प्रॉपरली ये इदारा भी बेहतर काम कर सके।
सिविल सर्वेंट एक्ट के पे कुछ क्रिटिक्स की गई हैं। वो क्या क्रिटिक्स हैं कि जी इट लेड्स टू द पोलिटिसाइजेशन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी के, जाहिर है जब ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिशियंस के अंडर काम कर रही होती है तो इट कैन लीड देम टू द पोलिटिसाइजेशन। अगर कोई उनकी किसी पार्टी के साथ पॉलिटिकल एफिलिएशन है तो अल्टीमेटली वो बाद में ब्यूरोक्रेसी की वजह से जो है वो गलत फायदा उठा सकते हैं। डीम द कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड सिक्योरिटी ऑफ द सर्विसेज। अब क्योंकि सिविल सर्वेंट्स को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांट किया गया है कि वो अपनी सर्विसेज को परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन, उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनके एक्ट्स के लिए। तो इस चीज़ का जो है वो गलत फ़ायदा उठा लिया जाएगा। वायलेशन ऑफ मेरिट, अल्टीमेटली दैट इज़ टू बी कंसीडर्ड दैट दिस इज़ द वायलेशन ऑफ मेरिट। हाउ कि आप जो है क्या किया जाता है कि इसकी जो कोई भी शख्स अगर सिविल सर्वेंट अपॉइंट होता है तो उसके लिए फर्स्ट जो है वो एजुकेशन जो क्राइटेरिया है दैट इज़ द BA। उसके बाद अगर वो शख्स जो है वो एक एग्ज़ाम पास भी कर लेता है मैक्सिमम सिलेबस को कवर करके, लेकिन उसने उस मैक्सिमम सिलेबस को शायद वैसा अंडरस्टैंड नहीं किया होता जैसा कि एक शख्स जिसने प्रॉपर एक बैचलर्स मास्टर्स MPhil की डिग्री ली होती है। द पर्सन बेसिकली नोज मोर अबाउट द सब्जेक्ट एंड अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट देन द पर्सन who have just prepared it for some exam। तो ये वायोलेशन ऑफ मेरिट है। इस बेसिकली उन लोगों को अपॉइंट किया जाना चाहिए जो जो किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए ज़्यादा लाइक अगर आप किसी MPhil मास्टर्स PhD को अपॉइंट करते हैं तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल देन अपॉइंटेड अ पर्सन हु इज़ जस्ट BA पास एंड ही हैज़ प्रिपेयर्ड इन एग्जाम फॉर अ जॉब। फिर है जी डिसमिसल ऑफ सिविल सर्वेंट्स विद ड्यू लीगल प्रोसेस। मोस्ट ऑफ द टाइम सिविल सर्वेंट्स को जो है वो लीगल प्रोसेस के लिए डिसमिस किया जाता है कि जी इसके बाद उनका एक लीगल प्रोसीजर होगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम सिविल सर्वेंट्स उस लीगल प्रोसेस में से इजीली जो है वो पास कर जाते हैं उस प्रोसेस को, एंड एट द एंड ऑफ द डे वापस जो है वो अपनी सर्विसेज को ज्वाइन कर लेते हैं। Unwarranted political interference in the posting and transfer, मोस्ट ऑफ द टाइम सिविल सर्वेंट्स के ऊपर जो है वो पॉलिटिशियंस काम कर रहे होते हैं। तो अगर कोई सिविल सर्वेंट बेहतर काम कर रहा है तो पॉलिटिशियंस का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है कि वो उनकी अगर कोई शख्स बेहतर काम कर रहा है तो उसकी पोस्टिंग कर दी, उसको ट्रांसफ़र कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो है उनका जो मोराल है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। मेकिंग द ब्यूरोक्रेसी वर्क इन द बेनिफिट ऑफ पॉलिटिकल हेड इंस्टेड ऑफ द स्टेट। Most of the times bureaucrats are working for the politicians because they are working under the politicians. They just don't want to get the transfers and they want the promotions. So because of this reason most of the times their intention is to work for the politician instead of working for the state of Pakistan. There are some suggestions that the age limit which is prescribed in the Civil Servant Act, that is basically 28 and now it's 38, that must be more relaxable. इसको ज़्यादा रिलैक्स किया जाना चाहिए ताकि ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग जो हैं वो सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकें। प्रमोशन क्राइटेरिया को बेहतर किया जाना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसमें प्रमोशन क्राइटेरिया जो है वो ऑलमोस्ट 5 years प्लस होता है कि अगर कोई शख्स जो है वो प्रमोट होता है उसकी प्रमोशन के लिए 5 year का एरिया अरसा उसे चाहिए होता है। बट इंस्टेड वी शुड मोर फोकस ऑन द एबिलिटीज़ कि अगर कोई शख्स विद इन अ ईयर विद इन 2 year अपनी एबिलिटीज़ को प्रूव कर रहा है तो उसको प्रमोट कर दिया जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द मोर लॉन्ग टाइम। कोटा सिस्टम जो है उसे बेहतर करना चाहिए। इट इज़ टू बी कंसीडर के बहुत सारे इलाके हैं जैसा कि बलूचिस्तान है, जैसा कि सिंध है या फिर KPK है, उनका कोटा जो है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू द कोटा फॉर द पंजाब। तो इस कोटा सिस्टम को इक्वालिटी बेसिस पे लाना चाहिए, सिस्टम को बेहतर बनाना चाहिए। देन देयर इज़ द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, अल्टीमेटली दिस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को ख़त्म करना चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स आर द basically employees of the state, so they should work for the state departments without any influence. Exercising authority जो है वो exercising होनी चाहिए उन अपने decisions के
एक्ट में तो ये चीज़ मेंशन है कि वो स्टेट की बेहतरी के लिए, स्टेट के बेटरमेंट के लिए किसी भी किस्म का डिसीजन ले सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इफ अ सिविल सर्वेंट टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन विच इज़ अगेंस्ट सम पॉलिटिशियन, तो उनको अपने उस डिसीजन के लिए क्वेश्चन तो नहीं करते कोर्ट या फिर स्टेट का लॉ, बट अल्टीमेटली दे आर बीइंग क्वेश्चनड हाउ कि उनको प्रमोट कर दिया जाता, सॉरी उनके ट्रांसफर्स कर दिए जाते हैं टू द एरियाज जहाँ पे शायद उनकी ज़रूरत नहीं होती, या फिर दैट आर द मोस्ट पैथेटिक टू वर्क एरियाज. So these are all the things that need to be considered in the Civil Servant Act and even in the civil services of the Pakistan. Thank you so much. That is the end of this topic.